ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਚੈਨਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਟੈਕ ਰਿਲੇਟਡ, ਫੋਨਸ, ਗੇਮਿੰਗ, ਲੈਪਟਾਪਸ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਉਹੀ ਕਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਪਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਹੀ ਲੈਣਾ ਟਫ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥਿੰਗਸ ਈਜ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਅਨਬੋਕਸਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੇਮਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਦ ਲਾਸਟ ਆਫ ਅਸ ਪਾਰਟ 2 ਗੇਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਈ, ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੀ ਵਿਊ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੈਨਲ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਟੈਕ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਟਫ ਰਹੂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈ ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਿਵੇਂ 50-50 ਸਪਲਿਟ ਹੈ, 50% ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ, 50% ਹੈਗੇ ਆਊਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਹੂਗੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵਾਸਤੇ ਔਕਵਰਡ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਦੇ ਬੋਲਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਮਾਂਡ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਥਰਡ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਰਿਲੇਟਡ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੈਕ ਫੋਕਸ ਹੀ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਲੋਗਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਟੈਕ ਫੋਕਸ ਚੈਨਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੈ, ਸਜੈਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਿਓ। ਆਈ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਦੈਮ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਚੰਗੀਆਂ ਸਜੈਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਡੀਓ ਖਰਾਬ ਲੱਗਿਆ ਹਲੇ ਤਾਂ ਸੌਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਡੀਓ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਗੇਅਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੇ ਬੀ ਆਡੀਓ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਨੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਬਟ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫਲੋ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਆਈਲ ਸਟਾਰਟ। ਅਤੇ ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ हैं। तो यार फाइनली ऑलमोस्ट आफ्टर 1 साल ऑफ रूमर्स के बाद एप्पल ने ऑफिशियली WWDC पे अनाउंस कर दिया कि वो अपनी मैक लाइनअप को इंटेल बेस्ड प्रोसेसर से आर्म बेस्ड प्रोसेसर्स पे लेके जा रहे हैं, जो कि वो खुद बनाएंगे। तो अब जानते हैं कि पहले तो इंटेल और आर्म बेस्ड प्रोसेसर्स में फ़र्क है क्या, एप्पल को ये मूव क्यों लेना पड़ा, और इससे हमारा क्या बेनिफिट है। तो यार पहले तो बात करते हैं इंटेल के आर्किटेक्चर के बारे में। तो इंटेल के नीचे एक x86 आर्किटेक्चर होता है जो इन्हीं का बनाया हुआ है, और AMD भी उसी को यूज़ करता है। तो इंटेल और AMD आप अगर कोई भी लैपटॉप यूज़ करते हो या PC यूज़ करते हो, तो यही दो प्रोसेसर्स आपको जनरली देखने को मिलेंगे उनमें।
तो अगर आप जो भी कंप्यूटर यूज करते हो तो आप बेसिकली x86 आर्किटेक्चर की मशीन पे यूज करते हो। अब इसके अंडर एक सिस्क आर्किटेक्चर होता है। ये जस्ट ध्यान में रखना, इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे हम, लेकिन ये जो सिस्क आर्किटेक्चर है इसके बारे में अगर आपको जानना है तो मैं एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का आर्टिकल लिंक करूंगा नीचे, तो वो जरूर आप जाके पढ़ सकते हैं। तो 1978 में लॉन्च हुआ था और इसके ना कुछ फीचर्स हैं कि इसमें अगर आप कुछ कोई बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क भी कर रहे हैं ना तो उसके लिए आपको बहुत कम लाइन ऑफ कोड लिखनी पड़ेगी, तो डेवलपर्स को काफी अच्छा लगता है। परफॉर्मेंस इसकी बेटर है आर्म से, लेकिन ये आर्म से अभी लेस एफिशिएंट है। तो यार इस केस में एफिशिएंसी का ये मतलब है कि अगर एक काम को करने के लिए आपका x86 प्रोसेसर 10 वॉट बिजली खाता है, तो उसी काम को करने के लिए एक आर्म का प्रोसेसर 4 से 5 वॉट की बिजली खाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आर्म प्रोसेसर्स की काफी ज्यादा कम होती है, एफिशिएंट है। तो एफिशिएंसी के मामले में मार खाता है, लेकिन परफॉर्मेंस बेटर है। अब आते हैं एक आर्म आर्किटेक्चर के ऊपर। तो ये यूजुअली आपके फोन्स के अंदर यूज होता है। आप कोई भी आईफोन, एंड्रॉयड, टैबलेट, आईपैड कुछ भी यूज कर रहे हो तो वो आर्म आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड होगा। ये बेस्ड होता है रिस्क आर्किटेक्चर पे। ये थोड़ा सा बाद में लॉन्च हुआ था आपके प्रायर आफ्टर योर x86 आर्किटेक्चर, और इसके फीचर्स थोड़े उल्टे हैं। इसमें आपको अगर कॉम्प्लेक्स काम करना है तो आपको काफी ज्यादा लाइन लिखनी पड़ेगी। इनफैक्ट सिंपल काम को करने के लिए भी आपको ज्यादा लाइन लिखनी पड़ेगी, लेकिन इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। तो ये कम पावर में भी वो काम कर सकता है। परफॉर्मेंस इसकी कम है लेकिन एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है जस्ट दिखाने के लिए आपको कि रिस्क और सिस्क में क्या फर्क रहता है। तो अगर मान लो आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए 2 और 3, तो लेफ्ट साइड पे है आपका रिस्क आर्किटेक्चर। आप देख सकते हैं जस्ट 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने के लिए 4 लाइन ऑफ कोड लिखी गई हैं, और राइट में आपका सिस्क आर्किटेक्चर जिसमें एक ही लाइन में काम हो गया। तो आप अगर डेवलपर हो तो आप ऑब्वियसली एक x86 आर्किटेक्चर को ही प्रेफर करोगे, क्योंकि वो बहुत बड़े काम को बहुत छोटे लाइन ऑफ कोड में कर रहा है। यूनिवर्सल अपील इस आर्किटेक्चर की ज्यादा है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल था आपको ये चीज दिखाने के लिए। तो यार ये दोनों आर्किटेक्चर आए तो एक दूसरे के आसपास ही थे, क्योंकि 2 या 3 साल का फर्क था। लेकिन x86 बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ तो उसके दो मेन रीजन थे। एक तो x86 को इंटेल की बैकिंग थी, तो इंटेल एक बहुत बड़ी कंपनी थी, तो इन्होंने इसको एक काफी रोबस्ट प्लेटफॉर्म बना के रख लिया था जब तक आर्म आया। तो एक तो मैंने बताया कि उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क को आप बहुत इजीली कर सकते हो, तो इस वजह से डेवलपर्स की फर्स्ट चॉइस रहती थी हमेशा। क्योंकि डेवलपर्स कोई आप क्यों, अगर किसी काम को आप इजीली कर सकते हो तो आप उसको टफ वे में क्यों करना चाहोगे, है ना। तो ये रीजन था बेसिकली कि आर्म क्यों नहीं पॉपुलर हुआ और x86 बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। तो यार अब जानते हैं कि फाइनली एप्पल क्यों मूव कर रहा है इंटेल से आर्म बेस्ड सीपीयूज पे। तो इसके दो मेजर रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग कि मिनिमम जनरेशनल इंप्रूवमेंट्स इंटेल की, और सेकंड परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन ड्यू टू थर्मल थ्रॉटलिंग। तो अब मैं आपको ये दोनों चीजें समझाता हूँ कि बेसिकली है क्या। तो पहले जानते हैं थर्मल डिग्रेडेशन, थर्मल थ्रॉटलिंग की वजह से परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन। तो यार होता क्या है ना कि जो एक प्रोसेसर होता है वो यूजुअली आपकी ह्यूमन बॉडी की तरह ही काम करता है। तो ह्यूमन बॉडी में आप खाना खाते हो, आपको एनर्जी मिलती है। तो मान लीजिए आप उस एनर्जी को किसी एक्टिविटी में यूज कर रहे हैं, जैसे हो सकता है रनिंग हो, है ना। तो आप जितना तेज भाग रहे हो आप उतनी ही एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, और आपकी बॉडी उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी एज उसका बाय प्रोडक्ट। तो होता क्या है, अगर आप बहुत टाइम भागते रहे, हीट आपकी बढ़ती रही, तो एक टाइम आएगा जब आपकी बॉडी उस हीट को सस्टेन नहीं कर पाएगी और धीरे धीरे आपकी स्पीड कम होती जाएगी। आप एक सिंगल पेस पे नहीं भाग पाओगे। तो सेम केस होता है एक प्रोसेसर के साथ। तो एक प्रोसेसर क्या करता है, उसकी इनपुट क्या होता है, उसका खाना क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, या जिसको हम मेजर करते हैं एक बार वोल्टेज में, सीपीयू के केस में। तो सीपीयू भी भागता है, सीपीयू की भागने की स्पीड को बोला जाता है क्लॉक स्पीड। अब क्लॉक स्पीड को मेजर किया जाता है गीगाहर्ट्ज में। तो अगर सीपीयू तेज दौड़ रहा है तो सीपीयू उतनी हीट जनरेट करेगा। अगर आप टाइम पे उस हीट को नहीं निकाल रहे हो तो वो सीपीयू क्या करता है, धीरे धीरे अपनी स्पीड कम करने लग जाता है। तो अगर टेम्परेचर की वजह से
सीपीयू की स्पीड कम हो रही है, तो उस फिनोमिनन को बोला जाता है थर्मल थ्रॉटलिंग। तो यार ये दिक्कत आनी शुरू हुई बेसिकली 2017 के बाद, जब एप्पल ने अपनी मैकबुक प्रोज को कम्प्लीटली डुअल कोर से क्वाड कोर में शिफ्ट कर दिया, मतलब मिनिमम क्वाड कोर कॉन्फ़िगरेशन में होगा। तो आपके पास 3 ऑप्शन मिलते हैं अभी, i5, i7 और i9। i5 सबसे कम परफॉर्म करता है इन तीनों में से, और i9 सबसे ज्यादा। तो ये हुआ क्या कि आपने यूजुअली देखा होगा कि एप्पल की मैकबुक्स बहुत पतले होते हैं, है ना। तो यार अब अगर इतने बड़े और बीफी प्रोसेसर आप डाल रहे हो, तो ऑब्वियसली वो तो परफॉर्म करेंगे ही, लेकिन उनको उनके ऑप्टिमम लेवल तक परफॉर्म कराने के लिए आपको एक अकम्पनिंग उतनी ही पावर का कूलिंग सॉल्यूशन भी देना पड़ेगा, जो कि इतनी थिन चैसी में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है बनाना। तो प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी आप सीपीयू देखते हो तो सीपीयू के 2 या 3 मैट्रिक्स होते हैं। एक होता है टीडीपी, एक होता है बेस क्लॉक, एक होता है बूस्ट क्लॉक। तो भाई टीडीपी क्या होता है कि भाई ये इतनी बिजली खाएगा, ये इतने वॉट खाएगा, है ना। बेस क्लॉक कहता है कि मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी पे तो ये लैप प्रोसेसर आपका चलेगा ही चलेगा। बूस्ट क्लॉक क्या कहता है, अगर आप इस प्रोसेसर को एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर एनवायरनमेंट में चलाओ, इसमें ओवरहीट ना हो, तो इसकी परफॉर्मेंस इस लेवल तक जा सकती है। जैसे मान लीजिए बेस क्लॉक है 2.6 गीगाहर्ट्ज और आपका बूस्ट क्लॉक है 4 गीगाहर्ट्ज। तो अब हो क्या रहा था, एप्पल ने रिसेंटली ये पंगा इतना आगे क्यों आया, जब 2019 में उन्होंने एक i9 चिप डाल दी अपने मैकबुक प्रो में। तो i9 टॉप ऑफ द लाइन चिप है, सबको पता है। उससे ऊपर इस टाइम पे लैपटॉप्स में कोई चिप नहीं है, अब आ चुकी है लेकिन पहले नहीं थी 2019 में। तो अभी क्या हुआ कि जैसे उन्होंने उस i9 को उसके अंदर डाला, तो प्रोसेसर तो बढ़िया है, लेकिन भाई इतना पतले होने की वजह से वो कूल ही नहीं कर पा रहा उसको। तो प्रॉब्लम क्या हुई, जैसे मैंने बोला थर्मल थ्रॉटलिंग को हिट करना शुरू किया, उसकी स्पीड इतनी गिर गई कि वो बेस क्लॉक से भी नीचे जाने लग गया कभी कभी, अगर आपको उसको ज्यादा पुश हार्ड करोगे, उसके ऊपर ज्यादा हैवी एप्लीकेशन चलाओगे। तो भाई, तो लोग ना मजाक सा बनाने लग गया एप्पल का, कि एक जगह रखा विंडोज का पीसी, है ना, जिसमें i7 है और काफी अच्छा कूलिंग सॉल्यूशन है, एक जगह रखा i9 अपना मैकबुक प्रो। ये वाला i9 थ्योरेटिकली बहुत बेटर परफॉर्म करना चाहिए था i7 से, लेकिन थर्मल थ्रॉटलिंग की वजह से इसकी परफॉर्मेंस इतनी नीचे गिरी कि ये i9 इस i7 से भी नीचे परफॉर्म करने लगा। तो ऑब्वियसली अब अगर आप अपग्रेड की कॉस्ट देखो तो $300-400 का सिर्फ प्रोसेसर में ही फर्क होता है, मतलब आपका 20-30 हजार के आसपास, है ना। तो 20-30 हजार रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो और आप परफॉर्म कर रहे हो उससे भी सस्ते लैपटॉप से भी वर्स्ट, तो ये तो आपके मनी के वर्थ नहीं हुआ ना। तो लोगों ने काफी इस चीज को पॉइंट आउट करना शुरू किया, फिर मीम भी बने कि लोग अपने मैकबुक प्रोस को रेफ्रिजरेटर में डाल के चला रहे हैं। तो ये एक पुशिंग पॉइंट हो गया था बेसिकली एप्पल के लिए। और फिर एक बात आती है इंटेल की मिनिमम जनरेशन इंप्रूवमेंट्स। अगर आप इंटेल का जैसे अपने आपके आईफोन आते हैं ना, तो आपको पता है आईफोन 6 है, आईफोन 7 है, आईफोन 8 है, आईफोन 10 है, आईफोन 11 है। तो ये जनरेशन बाय, इसको एक जनरेशनल इंप्रूवमेंट बोलते हैं, जब 6 से 7 पे जाते हैं, 7 से 8 पे जाते हैं। तो इस सेम फंडा होता है प्रोसेसर्स के अंदर। अब प्रोसेसर में क्या होता है, 6 जेन, जैसे मान लो 7 जेन, 8 जेन, करंटली इंटेल की 10th जेन चल रही है। तो यार कायदे से तो जैसे आप आईफोन 6 से 7 पे जाते हो तो आप देखोगे ना प्रोसेसर बहुत तगड़ा हुआ, काफी इंप्रूवमेंट्स आई, तो आपको मतलब लगता है कि हाँ यार पिछले से फर्क है। लेकिन इंटेल के केस में क्या हो रहा था कि इंटेल का काफी टाइम से ना कोई कॉम्पिटिटर नहीं था मार्केट में, 3-4 साल पहले से। तो पूरा मार्केट शेयर उनका था, तो भाई कंप्लेसेंट होके बैठे थे कि भाई हम ही राजा है, हमारा हमने जो बना दिया वही चलेगा। तो उन्होंने इनोवेशन करना बेसिकली थोड़ा बहुत कम कर दिया था। तो लोग ये पहली बात पॉइंट आउट कर रहे थे कि भाई जैसे मान लो 4th से 6th जनरेशन में आए तो ज्यादा फर्क नहीं लग रहा, 6 से 7th में गए तो ज्यादा फर्क नहीं लग रहा। तो ये भी एक फैक्टर आ गया था जिसने एप्पल को पुश किया कि यार इंटेल को हटा के अब अपना आर्म बनाते हैं। तो यार अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर एप्पल अपना आर्म बेस्ड प्रोसेसर बना रहा है, तो हमने तो देखा है ना कि आर्म बेस्ड प्रोसेसर x86 के मुकाबले में कम काम करता है।
तो जो भी एग्जिस्टिंग इंटेल प्रोसेसर्स हैं उससे तो उसको कम मतलब परफॉर्मेंस मिलेगी हम लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये बेंचमार्क है गीक बेंच 5 करके। तो ये हर एक डिवाइस पे चलता है, भले वो आईफोन हो, आपका एंड्रॉयड फ़ोन हो, आपका लैपटॉप हो, आपका डेस्कटॉप हो। तो ये बेंचमार्क आप डाउनलोड करके अपने डिवाइस पे भी चला कर देख सकते हैं, और आपको ये दो स्कोर देगा। एक होता है सिंगल कोर परफॉर्मेंस, एक होता है मल्टी कोर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो मैंने इन दोनों मेट्रिक्स को दो ग्राफ्स में डिवाइड किया है। अब ये ग्राफ में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि इस ग्राफ के अंदर मैंने जो भी डिवाइस लिया है ना, भले वो आईफोन हो, मैकबुक प्रो हो, एंड्रॉयड हो, आईपैड हो, तो उस साल के अंदर जो भी उसका हाईएस्ट एंड वर्जन अवेलेबल होगा उस प्रोसेसर का, तो वो मैंने लिया है। तो मान लीजिए 2017 में मैकबुक प्रो में हाईएस्ट i7 था, तो उस साल i7 है। 2018 में i9 आया, तो i9 है। ठीक है, तो अब बात करते हैं पहले सिंगल कोर परफॉर्मेंस की। तो इस चार्ट में आप इजीली देख सकते हो कि आईफोन हर साल 2017 से सिंगल कोर परफॉर्मेंस में हाईएस्ट एंड मैकबुक प्रो को बीट करते हुए आ रहा है। और आप ये ध्यान में रखना, आईफोन आपका $1000 तक का है, और जो मैकबुक प्रो से मैं कंपेयर कर रहा हूँ वो $3000 प्लस का मॉडल होता है, क्योंकि ये हाईएस्ट एंड मॉडल है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स कॉस्ट है, और परफॉर्मेंस सिंगल कोर में आईफोन की ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, अब मेन बात आती है मल्टी कोर परफॉर्मेंस में। तो ये मैट्रिक ऐसा है कि इसमें आपको अच्छा होना पड़ेगा रियल वर्ल्ड यूजेज में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट लाने के लिए। तो अगर इसमें अच्छा नहीं है तो सिंगल कोर परफॉर्मेंस का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप 2017 में देखिए कि iOS के डिवाइसेस सिग्निफिकेंटली पीछे थे मैकबुक प्रो के रिलेटेड, है ना। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जंप आता है 2018 में। 2018 में मैकबुक में i9 प्रोसेसर आया था, और उसी साल एप्पल ने अपने आईपैड में एक A12X करके प्रोसेसर डाला था। और आप उसका बेंचमार्क का स्कोर देखिए, 2017 के बाद ऑलमोस्ट डबल की जंप मारी है, और ऑलमोस्ट गैप क्लोज ही कर दिया है मैकबुक प्रो की कंपैरिजन में। तो आप देख सकते हैं कि एप्पल 2018 में इतना तगड़ा प्रोसेसर बना चुका था आईपैड के अंदर, जो एक i9 लैपटॉप को भी टक्कर दे सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इस एग्जांपल से आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि अगर एप्पल चाहे तो इजीली इस मैकबुक प्रो में जो इंटेल प्रोसेसर्स हैं उनमें अपना आर्म प्रोसेसर डाल के उनको आउट परफॉर्म कर सकता है। तो यार बात आती है, अगर एप्पल इतने अच्छे प्रोसेसर्स पहले ही अपने आईफोन और आईपैड के लिए बना के बैठा है, तो उसने वो प्रोसेसर्स क्यों नहीं पोर्ट किए अपने लैपटॉप्स के ऊपर। तो इसका बिगेस्ट रीजन है आपका डेवलपर सपोर्ट। तो अगर आप जितना भी पावरफुल प्रोसेसर बना लो, कितना भी उसको एफिशिएंट बना लो, अगर उसके ऊपर पॉपुलर एप्स नहीं चलेंगी तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लोग क्यों ही लेंगे फिर आपका प्रोडक्ट, है ना। तो इसीलिए ये काम माइक्रोसॉफ्ट काफी टाइम से कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है, और वो 2017 से उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि वो अपने विंडोज को आर्म प्लेटफॉर्म के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, है ना। और 2019 में तो उन्होंने एक प्रोडक्ट भी निकाल दिया था, माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस प्रो एक्स, जो कि इंडिया में भी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। ये एक विंडोज रनिंग टैबलेट कम लैपटॉप है, जिसके अंदर एक माइक्रोसॉफ्ट का खुद का बनाया हुआ आर्म प्रोसेसर है। अब माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल ऐसी दो कंपनीज हैं जो डेवलपर्स को इंसेंटिव दे सकती हैं कि वो अपने x86 प्लेटफॉर्म की डेवलपमेंट के साथ साथ आर्म डेवलपमेंट को भी पुश करें। तो ये काफी बड़ा रीजन है कि अभी तक हमको ये चीजें देखने को क्यों नहीं मिली हैं। तो यार बात आती है कि चलो एप्पल ने आर्म का प्रोसेसर बना दिया, है ना, अपने लैपटॉप्स में डाल दिया, तो इससे में फायदा क्या होगा। इसके मेजरली 3 फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये होगा कि लैपटॉप अपने उस थिन फ्रेम के अंदर एक ऐसा प्रोसेसर चला पाएंगे जो एक तो थर्मल थ्रॉटल नहीं होगा और अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम कर पाएगा। और आर्म का प्रोसेसर एफिशिएंट ज़्यादा होता है, तो इस रीजन से हमको लैपटॉप में एक इंक्रीज बैटरी लाइफ का भी बेनिफिट मिलने वाला है। सेकेंड जो बेनिफिट मुझे लगता है जो होगा कि अगर आप किसी भी कंपनी का कंपोनेंट अपने प्रोडक्ट में यूज़ करते हो तो आपको उसको लाइसेंसिंग फीस देनी पड़ती है। तो इस केस में अगर एप्पल अपना ही प्रोसेसर बनाएगा तो उसको इंटेल को कोई पैसा एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है, सारी डेवलपमेंट उनके हाथ में होगी। तो होपफुली आपकी कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। थर्ड बेनिफिट जो मेरे को लगता है कि यार ये जो मूव है ना,
एक कंपटीशन की एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा इस टेक वर्ल्ड में। तो जब ये इंटेल देखेगा कि यार एप्पल हमसे शिफ्ट कर रहा है, तो इंटेल भी फोर्स होगा इनोवेट करने के लिए, सेम उस वे में जैसे राइजन ने अभी फोर्स किया है एएमडी ने इंटेल को इनोवेट करने के लिए। तो ये एक हमारे लिए ही बहुत अच्छी होगी, क्योंकि कंपटीशन बेटर प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं और इसमें एंड में कंज्यूमर ही जीतता है। यार जो चौथा बेनिफिट है मेरे हिसाब से एक बहुत तगड़ा बेनिफिट है हम सबके लिए। आपको पता होगा कि अगर आपको फोटोशॉप यूज करनी है, जो कि काफी बड़ा सॉफ्टवेयर है, आपको या तो कोई विंडोज लैपटॉप चाहिए या मैकबुक चाहिए करंटली, है ना, क्योंकि इन्हीं के ऊपर आपको फुल वर्जन मिलता है। एक छोटा सा वर्जन भी होता है जो इन लोगों ने मोबाइल के लिए डेवलप किया हुआ है, लेकिन वो बेसिक नीड्स आपकी पूरी कर देगा, लेकिन वो वाली फील नहीं देता है ना। तो अगर आपके अब लैपटॉप्स और मैकबुक्स भी आर्म के ऊपर आ जाएंगे, तो डेवलपर्स उन एप्स को उनको उनके लिए भी कोड करना पड़ेगा। अब अगर उनके लिए कोड की, तो यार ये एप्स आपकी नेटिवली अपने मोबाइल फोन्स के ऊपर भी चल पाएंगी, क्योंकि हमने देखा कि आजकल मोबाइल फोन्स के प्रोसेसर मोर देन केपेबल है इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए। तो मोबाइल फोन्स भी आपके डेस्कटॉप वाले फुल फ्लेज्ड एप्स को चला सकते हैं। और सेम अदर वे भी होगा, कुछ एप्स होती हैं जो आपको मोबाइल फोन पे बेटर लगती हैं, है ना, जैसे आपके सोशल मीडिया एप्स हो गई, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, फेसबुक हो गया, ये मोबाइल पे चलानी थोड़ी ईजियर रहती हैं। तो ये एप्स भी बिना किसी झंझट के नेटिवली आपके मैकबुक या आपके लैपटॉप के ऊपर चल पाएंगी। तो यार ये था मेरा टेक इस टॉपिक को लेकर। थोड़ी लंबी हो गई वीडियो, लेकिन होपफुली आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी लगी तो प्लीज़ ज़रूर मेरे को कमेंट में बताना, ताकि मैं उस चीज़ पे इम्प्रूव कर पाऊँ। और अगर आप अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। चलो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।